پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن آپ کی عوامی ایئر لائن، آپ کی خدمت ہمارا نصب العین ہے۔ پاکستان کے سفر کے لیے پیرس اور وایا ملان فلائٹس اویلیبل اور 35 کلو لگیج الاؤڈ۔ پیرس 10 میں میٹرو اسٹیشن کے بالکل قریب ہمارے ہیڈ آفس میں آج ہی آئیں اور PIA کو اپنا ہم سفر بنائیں۔ فرانس میں پاکستانی کمیونٹی کو چاہیے کہ PTI فرانس کو جوائن کیجیے اور ملک میں تبدیلی لائیں۔ پاکستان میں صرف عمران خان ہی تبدیلی لا سکتے ہیں، اس لیے عمران خان کا ساتھ دیجیے۔ شکریہ۔ جب آئے گا عمران سب کی جان بڑھے گی، اس قوم کی شان بنے گا نیا پاکستان۔ تاج محل ریسٹورانٹ پاکستانی اور انڈین فلیورز کا مرکز۔ ان کی خاصیت روایتی ٹکا کباب اور مکس گرل ہے۔ گوزاں ویل میں واقع اس ریسٹورانٹ کے مالک راجہ اشفاق مسلم لیگ نون آزاد کشمیر کے فرانس کے پریزیڈنٹ ہیں۔ بہترین کھانوں کے لیے آج ہی تشریف لائیں۔ فیصل فاسٹ فوڈ روجاری پیرس 10 میں بہترین فاسٹ فوڈ کا مرکز، ٹکا کباب اور کئی عمدہ پاکستانی کھانے میسر۔ اس کے علاوہ ان کی دوسری برانچ فیصل ریسٹورانٹ جو کہ اوبر ویلیخ میں واقع ہے، اس میں شادی بیاہ اور دیگر تقریبات کے لیے کھانے اور مٹھائی کی خاص بکنگز کی جاتی ہیں۔ آرڈر کے لیے آج ہی مسٹر یاسین سے 01452333464 پر رابطہ کریں۔ فرانس میں پاکستانی کمیونٹی کو دعوت دی جاتی ہے۔ مسلم لیگ نون فرانس کو جوائن کیجیے۔ آپ کے تمام مسائل کا حل مسلم لیگ نون پیافیٹ فرانس۔ مرچ مسالہ ریسٹورانٹ میتھو لاکونف پر پاکستانی اور انڈین کھانوں کا یہ پہلا ریسٹورانٹ۔ مرچ مسالہ ریسٹورانٹ پاکستانی کمیونٹی کا فیوریٹ ریسٹورانٹ ہے۔ جس نے ایک بار ادھر کھانا کھایا وہ بار بار آیا۔ مرچ مسالہ ریسٹورانٹ میں ہر قسم کی عمدہ تازہ مٹھائی بھی دستیاب ہے۔ اونر زویب اقبال، ابرار اقبال، وزیر آبادی۔ زوبیا کیش اینڈ کیری باغی جزیم میں ان کا اپنا مارک زوبیا چاول، زوبیا آٹا، زوبیا جوس، علاوہ تازہ سبزی، ہر قسم کا مسالہ جاٹ، تازہ حلال گوشت اور تازہ مٹھائی ہر وقت موجود۔ زوبیا کیش اینڈ کیری ہول سیل بھی پرووائڈ کرتے ہیں۔ PIA آفس کے سامنے والی گلی بندے روی de la Fidélité، باغی جزیم، میٹرو گیار de l'Est۔ اونر چودھری عمران سمیلا اور ساجد مجید۔ علی بشری گاردونوٹ کے بالکل پاس پیرس 10 میں بامبے ریسٹورانٹ والوں کی علی بشری۔ اس نئی دکان میں اعلیٰ کوالٹی کا حلال گوشت ہر وقت دستیاب ہے۔ سروسز کے لیے آج ہی رابطہ کریں۔ پروپرائٹرز ہیں میاں کاشف حنیف اور میاں عاطف حنیف۔ رائل پرنس ریسٹورانٹ پیرس کے قریب شامپینی سومان میں بہترین پاکستانی اور انڈین کھانوں کا مرکز، 300 سیٹس کا ریسٹورانٹ، شادی بیاہ اور ہر قسم کے فنکشن کے لیے بہت خوبصورت ریسٹورانٹ۔ 41 rue Jean Jaurès، شامپینی سومان۔ اونر چودھری ظفر ککرالی۔ سستا اور معیاری بفے ریسٹورانٹ جس میں طرح طرح کے لذیذ کھانے سستے داموں میں دستیاب، مکس گرل، فش، چپلی کباب، سجی اور بہت سی ٹیسٹی ورائٹیز ان کے مینیو میں شامل۔ ولیج لکورنیو میں موجود آپ کا اپنا بفے ریسٹورانٹ، پروپرائٹر وحید ڈار۔ سبحانی بازار گیاخ لاگونیس گیاخ کے پاس سبحانی مارکیٹ میں گھریلو ضروریات کے لیے ہر قسم کی اشیاء سستے داموں دستیاب ہیں۔ ایک بار ضرور تشریف لائیں۔ پاکستانی کمیونٹی کے لیے خصوصی رعایت۔ اونر ساجد سبحانی۔ فرانس میں پاکستانی پہلی سیاسی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی، ذوالفقار علی بھٹو شہید کی پارٹی، بے نظیر بھٹو شہید کی پارٹی۔ آج بلاول زرداری بھٹو کا ساتھ دیجیے، اگلے الیکشن میں پیپلز پارٹی کو جتائیے۔ پیپلز پارٹی کا نعرہ روٹی کپڑا اور مکان۔ بھٹو زندہ ہے، کل بھی بھٹو زندہ تھا، آج بھی بھٹو زندہ۔ سوسیتے آجے وہاں بندے روی ایمیل زولا لاکورنیف میں ہول سیل اور ریٹیل میں کھلے کپڑے اور ٹیچی کیسز کا بہترین مرکز، پاکستانی کمیونٹی کے لیے خاص رعایت۔ کوریڈور کے آخر میں رائٹ سائڈ پر ان کا مرکز۔ اونر غلام مصطفیٰ اور غلام بابر مصطفیٰ۔
यूनिफॉर्म शॉप लाकोनेव में हमारे पास रंग और बिजली का काम करने वाली यूनिफॉर्म बहुत अच्छी कीमत में दस्तयाब है। पैंट, टी शर्ट और टोपी 10 यूरोज़। सिलाई का काम और पैंट की मरम्मत का काम तसल्ली बख्श किया जाता है। इसके अलावा क्रिकेट का सामान, लूडो, कैरम बोर्ड भी मिल सकता है। DVD मूवीज़ 1 यूरो। ड्रम स्टॉप, तोंतों, ओनर मियाँ नाजिम, मियाँ गालिब। अनमोल कैटरिंग सर्विस, अनमोल स्वीट्स एंड बेकर्स। ग्याश लागोनेस में कोरा स्टोर के बिल्कुल साथ अनमोल कैटरिंग सर्विस इस वक्त शादी ब्याह और दीगर तकरीबात में इनके खाने पेरिस में नंबर 1 पर जा रहे हैं। फ्रेश लजीज मिठाई और समोसा जात हर वक्त दस्तयाब हैं और ऑर्डर पे भी तैयार किए जाते हैं। ये पेरिस में होल सेलर्स भी हैं। इनकी कीमत बहुत ही मुनासिब होती है। शादी ब्याह में अनमोल के खानों की हर जगह खुशबू आती है। ऑर्डर के लिए चौधरी जुल्फिकार अली या चौधरी तनवीर अहमद से रब्ता कीजिए। परदेस में अपने प्यारों के अलावा अपने रिवायती खानों की याद सभी को आती है, मगर मिस्टर मोहम्मद इमरान ऑफ कराची ने जायका रेस्टोरेंट की शक्ल में अपनी कम्युनिटी को लाजवाब जायका दिया है। इनका बफे सिस्टम तमाम तकरीबात के लिए सूटेबल है। 300 अफराद की गुंजाइश के साथ विली ऑफ लोबेल में वाक़े जायका रेस्टोरेंट पर तशरीफ लाकर अपने रिवायती खानों का भरपूर लुत्फ उठाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज जिस शख्सियत से मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूँ, ये शख्सियत किसी से ढकी छुपी हुई नहीं है। इनका एक नाम है, एक मकाम है और पेरिस में काफ़ी अरसा से रह रहे हैं। ज़िला मंडी बहाउद्दीन, आबाओ जदाद इनके वहाँ से ही सियासत करते आए हैं। आज ये भी सियासत में है। फ्रांस के अंदर कोई भी पाकिस्तानी ऐसा नहीं है जो इनके नाम से वाकिफ़ नहीं है, जो इनके काम से वाकिफ़ नहीं है। बड़ी प्यारी शख्सियत, दीनी आवाज़, अपना एक लहजा, अपना एक तरीका इनका। और फिर इन्होंने PTI ज्वाइन की। आप जानते ही हैं कि ज़िला मंडी बहाउद्दीन में तकरीबन हर शख्सियत ही जो है वो PTI में जा चुकी है। इसकी पता नहीं क्या वजह है, वो इनसे ही पता करेंगे। लेकिन ये यहाँ PTI फ्रांस में चंद जो दोस्त, जो शख्सियात
PTI में शामिल हुई, 2 या 4, उनमें से इनका नाम आता है। आज तो यकीनन बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे दोस्त हैं इनके, ये बानियों में से हैं और इन्होंने काम करके दिखाया है कि पार्टी के लिए क्या कैसे काम किया जाता है, और इन्होंने अपने ज़ाती मफादात को बिल्कुल बलाए ताक रखकर पार्टी के लिए काम किया है, कर रहे हैं और यकीनन करते भी रहेंगे। मेरी मुराद चौधरी अफजाल गोंदल से हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, शुक्रिया बरनार साहब। अफजाल साहब, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे टाइम दिया। जी, आपको पता है काफ़ी दिनों से मैं आपकी जो है आपसे कह रहा था कि आप इंटरव्यू ज़रूर दें, क्योंकि आपका हक बनता है और आपने जो PTI के लिए यहाँ काम किया है, ज़ाहिर है सारे देख रहे हैं और मैंने भी आपको बड़े करीब से पाया है, देखा है। मेरा एक रूटीन का एक सवाल होता है, क्योंकि मंडी बहाउद्दीन तो मैंने वैसे बता दिया है यकीनन, जी, जी। तो क्योंकि लोग जानना चाहते हैं, जो भी मेरे नादरीन होते हैं, वो मैं चाहता हूँ कि उन्हें पता चले कि अगर मंडी से हैं तो वो कौन सा गांव है आपका और इब्तदाई तालीम आपने कहाँ से हासिल की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया बरनार साहब कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं आपकी वसातत से, तकबीर चैनल की वसातत से आवाम से अपनी जो आवाज़ है वो आवाम तक पहुँचा रहा हूँ। मेरा आबाई गांव भिक्खी शरीफ का एक छोटा सा कस्बा है, ठीक, डेरा चा भुलुआ के नाम से वो मशहूर है। डेरा नहीं है वैसे तो, वो भी गांव ही है, ठीक है, लेकिन भिक्खी शरीफ का एक छोटा हिस्सा है साथ। बिल्कुल ठीक। और मेरी जो फैमिली है उससे वैसे हमारा तल्लक गोंदल फैमिली से है, लेकिन हमें एक भुल्लू के नाम से पुकारा जाता है, ठीक है, जो हमारे जो हल्के गाँव में जो भिक्खी में हमारा जो एक बनता है वो भुल्लू फैमिली के नाम से ठीक है, मशहूर है। जी। तो आपकी इब्तदाई तालीम मेरी वो मेरे अपने गांव में ही एक प्राइमरी स्कूल से इब्तदा की, ठीक है, उसके बाद फिर आगे बढ़ते बढ़ते हाफिजाबाद में भी, मंडी बहाउद्दीन में भी। अच्छा जी। तो कौन से सन में आप यहाँ तशरीफ लाए फ्रांस में? मैं बरनार साहब 2007 में यहाँ पे फ्रांस आया हूँ। अच्छा, 2007 में। जी, 2007। यानी अभी इतनी देर नहीं हुई है आपको, लेकिन आपने आते ही यहाँ PTI ज्वाइन कर ली इस वक्त? मैंने 2007 में ही PTI ज्वाइन की और मैं 2007 से ही PTI का पेड मेंबर हूँ। ठीक, उस वक्त PTI फ्रांस में PTI का नाम कोई नहीं था। बिल्कुल ठीक है 2007 में जी। जब हमने PTI शुरू की तो 5-6 दोस्त थे, जिनमें उमर रहमान साहब भी थे, जिन्होंने हमें दावत दी। 2000 सैयद तहसीन अनवर भी थे? वो पहले थे। अच्छा, पहले थे सैयद तहसीन वो अनवर। यहाँ से बेल्जियम मूव हो चुके थे उस वक्त। बिल्कुल जब शुरू की थी उस वक्त उमर रहमान साहब थे, अशफाक चौधरी, बिल्कुल ठीक उसके है, साथ आफत और रवाज थे। साहब जी, 2010 में ठीक है, वो शुरू हुई थी। बिल्कुल ठीक है। तो आपके अबाउजदाद जो है वो मंडी से ज़ाहिर है वो भी सियासत करते आए हैं? जी, मेरे असल मेरा जो सियासत का कैरियर है, जिस मुझे सियासत में क्यों मैंने ज्वाइन की, बिल्कुल, मेरे जो परदादा थे चौधरी राजे खां पुल्लू जी, मैं बहुत छोटा था जब उनकी डेथ हुई। ठीक, तो मैं अक्सर जब थोड़ा बड़ा हुआ तो अपने दादा से उनकी बातें सुनता था, कुछ उनको भी मैंने देखा भी था। ठीक, तो वो इस काम में बहुत हद तक मुलव्वस थे और उनके कुछ ख्वाब थे जो शायद वो पूरे नहीं कर सके। जी। और उनके मेरे दादा के एक भाई अच्छा, जिनको दादा आपको पता है अफजाल साहब हमेशा पोतू में ख्वाब, वो इतना अपने बेटों में नहीं जितना वो पोतू में अपने ख्वाब देखते हैं। अच्छा, रिश्ता ऐसा है? जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। और एक मेरे दादा के भाई थे, उनके बेटे चौधरी राजे खां पुल्लू के, वो अता मोहम्मद पुल्लू उनका नाम था। मेरी पैदाइश से पहले फौत हो चुके थे। ठीक है। अब दादा जो उनकी कहानियां सुनाते थे, उनकी बातें सुनाते थे, तो मैं उनकी बातों से इतना जो है मेरे अंदर एक्सेप्टेशन आई कि शायद जो चीजें वो सोचते थे जो नहीं कर पाए, उनको जिंदगी ने मोहलत नहीं दी, क्यों ना मैं कुछ करूं और मैं उनका वो ख्वाब पूरा करूं। बिल्कुल ठीक है। और उसी मिशन को लेके मैंने अपने परदादा और दादा के मिशन को आप फॉलो करते हुए सियासत ज्वाइन की। तो वो आपके बावजूद जो थे वो पहले क्या यानी पीपल्स पार्टी से उनका तल्लुक था? जी, पीपल्स पार्टी से तल्लुक था। मेरे जो
परदादा चौधरी राजे खां पुल्लू थे, उन्होंने नज़र मोहम्मद गोंदल को फर्स्ट टाइम, जब नज़र मोहम्मद गोंदल साहब ने इलेक्शन लड़ा था, तो उनको इलेक्शन तक लाने वाले मेरे परदादा ही थे। ओके। और ये पिछले इलेक्शन के दौरान ये में नज़र मोहम्मद गोंदल साहब ने कबूल किया कि मुझे चौधरी राजे खां पुल्लू ने हाथ से पकड़कर असेंबली में ला के बिठाया था। बिल्कुल ठीक है। यानी आप, उसका मतलब है कि वो यानी वहाँ भी आप मेकर ही थे? इंशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। फ्रांस में भी आप मेकर ही नहीं है? अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये बताइए कि क्या यानी जो मौजूदा पोजीशन जो है पीपल्स अपना पीटीआई की यहाँ फ्रांस में, वो क्या है? यानी इलेक्शन तो हो गए, बॉडी आपकी वो जो बनी है, यानी आप ये चार, यानी क्या कानून क्या है आपका, या ये जो हो रहा है ये क्या हो रहा है, आप क्या समझते हैं? बरनारी साहब, असल में बदकिस्मती हमारी ये है कि बहुत सारे मुफाद परस्त लोग जो सियासत में इधर से उधर से इधर आते जाते रहते हैं, उनकी वजह से पूरी की पूरी सियासत में खराबियां आती रहती हैं। यहाँ पे जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ का एक इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाने का जो मकसद है, पार्टी के लोग उस मकसद को फॉलो नहीं करते। उसका मकसद ये होता है कि पार्टी के ही दो ग्रुप आपस में, जिस तरह बाकी बैरून मुल्कों में इलेक्शन होते हैं और मुल्क के प्रेसिडेंट चुने जाते हैं, इस तरह उनके अपने नुमाइंदे सामने आए और जो सामने आए दूसरे उनको सपोर्ट करें, ना कि उनकी टांगें खींचे, और उनको सपोर्ट करें और एक अच्छा प्लेटफॉर्म मुहैया किया जाए, ताकि जो सियासत में खानदानी रवायत है, जिस तरह आप देखते हैं बाकी पार्टियों में पुराने वक्तों के सदर चलते आ रहे हैं, वो उनको कोई हटाता नहीं, ये मिशन था। लेकिन बदकिस्मती से यहाँ पे जो सूरत नजर आ रही है, उसमें बहुत सारे लोग जो बिजनेस की वजह से पार्टी उन्होंने ज्वाइन की और वो समझते थे कि हम शायद अपने पैसे की वजह से आगे निकल जाएंगे, या हमारा पैसा जो है वो इस पार्टी पे हम हैवी हो जाएंगे, उस मकसद के लिए पार्टी में थोड़ी सी खराबियां या थोड़े से मुश्किलात आती रहती हैं। उसके बाद कुछ खामियां हमारा जो इंटरनेशनल अफेयर का ऑफिस है वहाँ पे भी होती हैं, वो ऐसे लोगों से अपनी एक लॉबिंग करने के चक्कर में पड़े रहते हैं, जो ऐसे लोगों से रब्ता करते हैं जो नॉन इलेक्टेड होते हैं और उनको जो है अपनी एक इधर उधर टांगे खींचने के मकसद के लिए इस्तेमाल करते रहते हैं। यानी आप ये कहना चाहते हैं कि इमरान खान का मकसद बहुत अच्छा और बेहतर है, यानी पार्टी के अंदर इलेक्शन होना, और ये रिस्क भी ले रहे हैं, जो कि उन्होंने ऑलरेडी पाकिस्तान में जो इलेक्शन को आए थे पार्टी के अंदर बहुत बड़ा रिस्क लिया था, और ज्यादा तादाद ये थी कि वो कहते थे कि आप ऐसा ना करें। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। तो यानी ग्रुपबंदी होती है। इसी तरह ओवरसीज में भी ये जो आपके इलेक्शन हो रहे हैं, मेरा ख्याल है तकरीबन पूरे यूरोप में कई जगहों पे हो चुके हैं, कई जगहों पे हो रहे हैं। जी बिल्कुल। तो यहाँ भी धड़ेबाजी है, और यानी क्या फिर चेंजिंग क्या है, तब्दीली क्या है? अगर आप लोग आपस में ही इस तरह का सिस्टम शुरू हो जाएगा, यानी आपका तो चाहिए मिशन एक होना चाहिए, मंजिल एक होनी चाहिए, और जितने लोग आप पुराने थे इसमें यकीनन दायर है वो आप लोग नजरियाती वर्कर थे। अब कोई अजीब सा नहीं लग रहा, धड़ाधड़ कोई अजीब वो पार्टी नजर नहीं आ रही है जो आज से 2 साल पहले थी? देखिए, लीडर वो होता है जो जिस तरह खान साहब ने पाकिस्तान में इंट्रा पार्टी इलेक्शन का ऐलान किया था, तो बाकी बहुत सारे लोगों ने उस पर इतराज किया कि खान साहब वक्त नहीं है, इसमें मुश्किलात आएंगी, और आई भी। लेकिन लीडर वो होता है जो जिसका एक टारगेट होता है, उसने अपने टारगेट तक पहुंचना होता है। खान साहब एक ऐसे लीडर हैं जो सोचते हैं वो खुद करके दिखाते हैं। खान साहब ने जब पीटीआई पाकिस्तान तरीके इंसाफ की बुनियाद रखी, उसके बाद उन्होंने ये पहला अपना नारा लगाया कि पार्टी के अंदर वर्कर नीचे से मैं आगे लाऊंगा, तो उन्होंने ये एक स्टेप लिया जो शायद लोगों की नजर में बोल्ड स्टेप था। पहला एक तजर्बा था जिसकी वजह से किसी भी जगह पे किसी भी काम पे कोई पहला तजर्बा किया जाए तो वो कामयाब किसी हद तक ना भी हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो नाकाम हो गया। मेरे ख्याल में वो एक कामयाब तरीन तजर्बा रहा, उसमें दुश्वारियां भी आई, वो अभी जस्टिस वजीउद्दीन साहब की रिपोर्ट के बाद खत्म भी हो गया, दोबारा आएगा, उसमें बेहतरी इंशाल्लाह जरूर आएगी। और रही बात तब्दीली की, जो आप तब्दीली की बात कर रहे हैं, तब्दीली बरनारी साहब तब्दीली सोच में आती है। ठीक है। खान साहब के पास या पाकिस्तान तरीके इंसाफ के अंदर कोई जादू की छड़ी नहीं है जिससे तब्दीली आनी है। तब्दीली आनी है सोच से। जब मैं अपनी सोच बदल लूंगा तो मेरे अंदर तब्दीली आ गई, आप अपनी सोच बदल लेंगे, आपके अंदर तब्दीली आ गई। ठीक है। मकसद पार्टी का यह है कि लोगों की सोच को बदलना। ठीक, चाहे हफ्ते में एक बंदा बदले, चाहे जो भी हो, सोच को बदलना, इसे ही तब्दीली आएगी।
اور یہی تبدیلی جو ہے اصل پاکستان کی تبدیلی ہے، جس میں آگے جا کے اس کا آنے والے وقت میں بہتری آئے گی. وقتی طور پہ اس میں دشواریاں بھی ہیں، مشکلات بھی ہیں، بہت ساری پرابلمز بھی آ رہی ہیں، دھڑے بندیاں بھی بن رہی ہیں، کیونکہ وہ لوگ جو اس طرح کے کام کر رہے ہیں وہ لوگ دوسری پارٹیوں سے آئے ہوئے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ان نظریاتی ورکر نہیں ہیں پارٹی کے. بالکل. ان کو ہر جگہ پہ عہدے کی پوزیشن کی ضرورت ہوتی ہے. وہ نہ صرف اوورسیز میں بلکہ پاکستان میں بھی ہر جگہ پہ. پہلے وہ مسلم لیگ میں تھے یا پی پی میں تھے، اب ظاہر یہ تیسرا بڑا گروپ بنا ہے. بالکل. وہ لوگ ادھر ادھر سے آئے ہیں جن کو ان میں وہاں پہ نئی جگہ ملی، ٹکٹیں نہیں ملی یا جگہ نہیں ملی، آج 4 پیسے آ گئے ہیں، تو انہوں نے پی ٹی آئی سمجھا کہ یہ پلیٹ فارم سستی شہرت کا ہے، اچھا پلیٹ فارم ہے، یہاں پہ آ جائیں. لیکن میں انشاءاللہ پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے اندر یا تو وہ لوگ رہیں گے جو پاکستان کے ساتھ اور پاکستان طریق انصاف کے ساتھ مخلص ہوں گے، ایماندار ہوں گے. دوسرے لوگ نکل جائیں گے، نہیں زیادہ دیر تک ٹک پائیں گے، کیونکہ وہ جس مقصد کے لیے آئے ان کا مقصد یہاں پہ پورا نہیں ہونے والا. منڈی بہاولدین میں یہ پہلا یعنی واحد ضلع ہے کہ جس میں دھڑا دھڑ لوگ پی ٹی آئی میں شامل ہوئے، آج بھی ہو رہے ہیں. کیا وہ یعنی عجیب صرف منڈی بہاولدین میں نہیں، پورے پاکستان ضلع منڈی بہاولدین کا میں نے دیکھا ہے کہ ہر گاؤں میں لوگ پی ٹی آئی میں، اس میں کوئی شک نہیں. یعنی تمام جو پرانے سیاسی رہ گئے ہیں، کوئی 2-4 گھرانے، وہ کوئی مسلم لیگ میں، کوئی پی پی میں ہے، باقی ساری دنیا جو ہے وہ پی ٹی آئی میں شامل ہو گئی ہے. سب کو ٹکٹیں ملیں گی کیا؟ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، سب کو ٹکٹیں نہیں ملیں گی، اور نہ ہی پی ٹی آئی کے پاس اتنی ٹکٹیں ہیں. لوگ جس طرح شامل ہو رہے ہیں، لوگ دیکھ رہے ہیں کہ آنے والے وقت میں جو پاکستان کے حالات نظر آ رہے ہیں وہ صرف اور صرف عوام کو سمجھ آ چکی ہے کہ عوام کا رجحان، عوام کو نظر آ رہا ہے کہ ان 2 سیاسی جماعتوں نے کتنے سالوں سے یہ حکومت کرتے آ رہے ہیں، ہم پہ کچھ نہیں دیا. پہلے انہوں نے عوام کو ایک جو بیوقوف بنانے والا سلسلہ تھا انہوں نے بنائے رکھا، لیکن اب آہستہ آہستہ عوام کی آنکھیں کھلتی جا رہی ہیں. تو عوام جب کا زور پی ٹی آئی کی طرف ہو رہا ہے تو ظاہر ہے جو لیڈران ہیں جن کو اپنے نام کو آگے کرنے کا زیادہ ہے کہ ہمیں ٹکٹ ملے گی یا ہم الیکشن لڑیں گے، تو ظاہر دھڑا دھڑ پی ٹی آئی جوائن کر رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. پچھلے دورانی الیکشن میں پاکستان تھا تو میرے خیال میں پی ٹی آئی کے پاس بہت کم کینڈیڈیٹ تھے. نون لیگ کے پاس ضلع منڈی بہاولدین میں ایکسٹرا کینڈیڈیٹ تھے، بہت ہی زیادہ، میرے اپنے حلقے میں بہت زیادہ. اس وقت سیم وہی کنڈیشن پی ٹی آئی کی بنی ہوئی ہے کہ پی ٹی آئی کے پاس لا تعداد کینڈیڈیٹ ہیں اس وقت ہر حلقے میں. باقی جماعتوں کے پاس اس وقت کینڈیڈیٹ نہیں ہے، میرے خیال میں ان کو ڈھونڈنے سے بھی شاید نہ ملے. پی ٹی آئی کے پاس کینڈیڈیٹ ہیں. مقصد صرف اتنا ہے کہ پارٹی ٹکٹ ایک کو دے گی. ظاہر ہے اگر تو وہ لوگ جو آئے ہیں پارٹی کے جو 20 ہیں وہ بھاگ جائیں گے، جو آئے ہیں پارٹی کے اندر، وہ تو اگر یہ مشن لے کے آئے ہیں کہ ہمیں صرف ٹکٹ لینی ہے تو میرا خیال ہے ان کا یہ مشن غلط ہے. ابھی سے ہی ان کو اپنا راستہ کوئی اور انتخاب چن لینا چاہیے. اگر وہ یہ مشن لے کے آئے کہ ہم نے پاکستان کے اندر بہتری لانی ہے اور پاکستان طریق انصاف کی سپورٹ کرنی ہے، پارٹی کا نظریاتی ورکر جو ہوتا ہے وہ پارٹی چاہے جسے بھی ٹکٹ دے، اس کو وہ یہ نہیں دیکھنا کہ سامنے کینڈیڈیٹ کون ہے، اسے یہ دیکھنا ہے کہ میں کس قیادت کو چن رہا ہوں. تو جو آئے ہیں اگر وہ یہ سوچ کے آ رہے ہیں کہ پارٹی جسے بھی ٹکٹ دے گی ہم اس کی سپورٹ کریں گے، اور میرے خیال میں کرنا بھی ایسے ہی چاہیے، تو انشاءاللہ منڈی بہاولدین میں پاکستان طریق انصاف لیڈ کرے گی. منڈی سے بات ہو رہی ہے، منڈی کی 1-2 نظرہ منڈی بہاولدین کی. آپ کو پتہ ہے پورے پاکستان میں یہ واحد ضلع ہے جس میں جج زیادہ ہیں. بالکل، یعنی عدلیہ میں بہت زیادہ لوگ ہیں، پولیس میں بہت زیادہ ہیں، پولیس میں بہت زیادہ ہیں. تو یہ عدلیہ میں جو اتنے لوگوں کا ہونا، ظاہر بڑے قابل لوگ ہوتے ہیں جو عدلیہ میں جج آج بیٹھے ہوئے ہیں. ویسے یہ کہیں وہ جو آج کل وہ جعلی ڈگری ہے جو آج کل وہ اس چکر میں دیکھیں عدلیہ میں تو جج تو جعلی ڈگری سے کوئی نہیں بنا ہوگا میرے خیال میں. منڈی میں کتنے کالج، کتنی تعلیم، کتنا یعنی یہاں یعنی مطلب اچھے ذہن ہیں کہ واقعی لوگ پڑھتے ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے. آج عدلیہ میں کہاں تک لوگ پہنچے ہیں، اور یہ چھوٹی بات ہے، بہت بڑی بات ہے. منڈی بہاولدین جو اگر اس کی تھوڑی بیک ہسٹری دیکھی جائے تو بیک ورلڈ ڈسٹرکٹس میں گنا جاتا تھا منڈی بہاولدین. پہلے گجرات میں تھے، جب علیحدہ ہوئے تو پھر ظاہر ہے کوئی بھی چیز الگ ہوتی ہے تو اس میں کافی ساری دشواریاں ہوتی ہیں. اس وقت جو منڈی بہاولدین کی بیسک عوام ہے وہ ہائیسٹ شمار کی جاتی ہے کہ اکانومی کے حساب سے منڈی بہاولدین ہائیسٹ لوگ جا رہا ہے. تو اس حساب سے بھی، اور لوگوں کا دوسرے نمبر پہ اکثریت جو ہے نا وہ بیرون ملک میں بہت زیادہ ہے.
यहाँ पे जब जो लोग आते हैं तो वो पीछे जो रह जाते हैं उनको ये समझाते हैं कि हम इतनी दुश्वारियां झेल रहे हैं आपके लिए, तो मेरे ख्याल में वो जो पीछे हैं वो समझते हैं कि शायद हमें पढ़ के कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे हमारे जो डिस्ट्रिक्ट का या हमारे मुल्क का नाम रोशन हो सके। तो मंडी बहाउद्दीन के लोग इस वक्त माशाल्लाह बहुत ही काबिल पोस्टों पे और बहुत ही सीनियर पोस्टों पे जा चुके हैं। और खासकर ओवरसीज में जो है आप सिर्फ आपने लेट आए हैं, लेकिन लेट कर देती है वैसे इनमें कोई शक नहीं। और इस सिर्फ जजेस नहीं है, अगर आप पाकिस्तान पुलिस में सिर्फ बड़ी पोस्टों में देखें, पिछले थोड़ा अरसा पहला नादरा के चेयरमैन, उसके बाद गिलगित बलोचिस्तान के चीफ सेक्रेटरी जो हैं अजमल गोंदा साहब, मंडी बहाउद्दीन से उनका तल्लक है, और भी बहुत सारे अगर आप बड़े जो ओहदे हैं, अच्छा तकरीबन 20-21 ग्रेड के लेवल पे, वो सारे मंडी बहाउद्दीन के ही आपको मिलेंगे इंशाल्लाह। और हर गांव का बंदा पुलिस में है। पुलिस में आप लोग क्यों जाते हैं ज्यादा, वजह क्या? नहीं, सिर्फ पुलिस में नहीं है, सारे हर फौज में तो खैर आप जाते नहीं है क्योंकि लड़ाई उधर नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे वालिद साहब रिटायर्ड फौजी हैं। मेरे वालिद साहब ने 1965 की जंग की हालत में फौज को ज्वाइन किया था, और सिर्फ इसलिए ज्वाइन किया था कि मैंने दुश्मन मुल्क से लड़ना है। और मेरे वालिद साहब उस वक्त 8 क्लास में पढ़ते थे, स्कूल से भाग के वो गए थे फौज ज्वाइन करने के लिए। तो वो बताते हैं कि जब उन्होंने वहां पे अपना टेस्ट वगैरह, उस वक्त तो धड़ाधड़ फौज में मेरिट जो है वो क्वालिफिकेशन नहीं देखी जाती थी, तो जब उन्होंने उनका टेस्ट लिया गया तो जो अफिसर था उसने रिजेक्ट कर दिया। तो उस वक्त एक हमारी फैमिली के जानने वाला था, तो उसने उस अफिसर को कहा कि साहब आप ये जिस लड़के को आप रिजेक्ट कर रहे हैं ना, ये किसी मजबूरी की वजह से नहीं आया, ये शौक की वजह से आया। और मेरे वालिद साहब कहते हैं कि जब मुझे उन्होंने रिजेक्ट किया तो मैंने पीछे खड़े होकर मैंने कहा कि साहब अगर मेरा मकसद फौज चाहता है सी कि मैं दुश्मन नाल लड़ना चाहता सा, तो मैंने भर्ती नहीं किया। अगर मैंने भर्ती कर दो तो मैं दुश्मन इन्ना क सबक सिखाना सी कि उन्हें सारी जिंदगी पाकिस्तान वालों वेखना नहीं सी। तो उन्होंने इंज करके ना पिछों वेख्या, जो पिछों वेख्या तो फिर जो नाल सी उन्हें दसिया कि फलानी फैमिली ने इन्हां दा तल्लक है और इन्हां दा मिशन फौज चाहना। मैंने ये भी नहीं उम्मीद कि इस बच्चे ने फौज पंजाबी में आपको पता है बातें। और मेरे जो वालिद साहब हैं उन्होंने 1965 की जंग लड़ी है, 1971 की जंग लड़ी है। तो ये कोई नहीं है कि मंडी बहाउद्दीन के लोग फौज में नहीं जाते, मैं अपने घर से ही फौज की इब्तदा कर देता हूँ। मेरे ख्याल में ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा अफजाल साहब से बातें करते हैं, जाइएगा नहीं। फ्रांस में पाकिस्तानी कम्युनिटी को दावत दी जाती है। मुस्लिम लीग नून फ्रांस को ज्वाइन कीजिए, आपके तमाम मसाइल का हल। मुस्लिम लीग नून पियाफिट फ्रांस। मिर्च मसाला रेस्टोरेंट मेथो लाकोंदफ पर पाकिस्तानी और इंडियन खानों का ये पहला रेस्टोरेंट। मिर्च मसाला रेस्टोरेंट पाकिस्तानी कम्युनिटी का फेवरेट रेस्टोरेंट है। जिसने एक बार इधर खाना खाया वो बार बार आया। मिर्च मसाला रेस्टोरेंट में हर किस्म की उम्दा ताज़ा मिठाई भी दस्तयाब है। ओनर ज़ुएब इकबाल, इब्रार इकबाल, वजीराबादी। अनमोल कैटरिंग सर्विस, अनमोल स्वीट्स एंड बेकर्स। ग्यास लागोनेस में कोरा स्टोर के बिल्कुल साथ अनमोल कैटरिंग सर्विस इस वक्त शादी ब्याह और दीगर तकरीबात में इनके खाने पेरिस में नंबर 1 पर जा रहे हैं। फ्रेश लजीज मिठाई और समोसा जात हर वक्त दस्तयाब हैं और ऑर्डर पे भी तैयार किए जाते हैं। ये पेरिस में होलसेलर्स भी हैं, इनकी कीमत बहुत ही मुनासिब होती है। शादी ब्याह में अनमोल के खानों की हर जगह खुशबू आती है। ऑर्डर के लिए चौधरी जुल्फिकार अली या चौधरी तनवीर अहमद से रब्ता कीजिए। यूनिफॉर्म शॉप लाकोनेफ में हमारे पास रंग और बिजली का काम करने वाली यूनिफॉर्म बहुत अच्छी कीमत में दस्तयाब है। पैंट, टी शर्ट और टोपी 10 यूरोज़। सिलाई का काम और पैंट की मरम्मत का काम तसल्ली बख्श किया जाता है। इसके अलावा क्रिकेट का सामान, लूडो, कैरम बोर्ड भी मिल सकता है। DVD मूवीज़ 1 यूरो। ट्राम स्टाप तोंतों ओनर मियाँ नाजिम, मियाँ गालिब। फ्रांस में पाकिस्तानी कम्युनिटी को चाहिए कि PTI फ्रांस को ज्वाइन कीजिए और मुल्क में तब्दीली लाएं। पाकिस्तान में सिर्फ इमरान खान ही तब्दीली ला सकते हैं, इसलिए इमरान खान का साथ दीजिए। शुक्रिया। जब आएगा इमरान
سب کی جان بڑھے گی اس قوم کی شان بنے گا نیا پاکستان رائل پرنس ریسٹورانٹ پیرس کے قریب شامپینی سومان میں بہترین پاکستانی اور انڈین کھانوں کا مرکز 300 سیٹس کا ریسٹورانٹ شادی بیاہ اور ہر قسم کے فنکشن کے لیے بہت خوبصورت ریسٹورانٹ 41 rue Jean Jaurès شامپینی سومان اونر چودھری ظفر ککرالی فرانس میں پاکستانی پہلی سیاسی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی ذوالفقار علی بھٹو شہید کی پارٹی بے نظیر بھٹو شہید کی پارٹی آج بلاول زرداری بھٹو کا ساتھ دیجیے اگلے الیکشن میں پیپلز پارٹی کو جتائیے پیپلز پارٹی کا نعرہ روٹی کپڑا اور مکان بھی بھٹو زندہ ہے کل بھی بھٹو زندہ تھا آج بھی بھٹو زندہ شاہ نواز شادی ہال اعلیٰ کوالٹی اور دلکشی کا انتظار نیشنل 14 ایپینی سخسین میں واقع پاکستانی کمیونٹی کا فیوریٹ ہال شاہ نواز شادی ہال 800 افراد تک کی گنجائش اور کھانے کی بکنگ کے ساتھ انتہائی مناسب ریٹ اس کے علاوہ آپ کی اپنی چوائس سے ڈیکوریشن بھی کی جاتی ہے اس کے ساتھ ساتھ عام دنوں میں بیفے ریسٹورینٹ بھی ہے اور آپ یہاں لنچ اور ڈنر فیملی کے ساتھ آ کر کر سکتے ہیں پارکنگ کی جگہ بھی موجود ہے اونر چودھری شاہ نواز چودھری افضان اور ابرار کیانی بکنگ کے لیے رابطہ کریں 0142353 جی افضال صاحب بات ہو رہی تھی ظاہر فوج کے حوالے سے ویسے اس میں قطعاً کوئی شک نہیں ہے کہ منڈی کے لوگ ظاہر آپ کے بزرگ تو رہے میرے بزرگ بھی رہے ہیں آرمی میں تو وہ کسی وقت کی بات ہے تو آج کل ویسے فوج میں نہیں جاتے اور کافی عرصے سے فوج میں نہیں جا رہے ہیں کہ وہاں خیر آپ کو پتہ ہے وہ جنگ کرنی پڑتی ہے اور جنگ لڑنی پڑتی ہے پولیس والے خیر آپ کا ذہن ہی سارے منڈی والے جو جتنے ہیں پولیس والا ذہن ہے آپ کا آپ یہ بتائیے کہ آپ ظاہر انفارمیشن سیکرٹری ہیں یہاں پی ٹی آئی کے فرانس میں اب یہ کیا آج کے حالات میں آپ پچھلے دنوں میں آپ کو پتہ ہے یہاں ایک باڈی بنی صدر بھی بنے وومن ونگز بھی سرٹیفکیٹ دیے گئے اور کافی آپ نے جو الگ الگ کیا پچھلے دنوں اب وہ ساری پھر تنظیم ٹوٹ گئی کیوں ایسا ہوا برناری صاحب اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جب انٹرا پارٹی الیکشن ہوتے ہیں تو وہاں پہ ایک کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے یہاں پہ اصولی طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جو الیکٹڈ ٹیم ہے اس نے مشاورت سے ایک ایگزیکٹو کمیٹی چننی ہوتی ہے پھر آگے جا کے اس نے اپنی الیکٹڈ ٹیم نے آگے جا کے اپنی جو پوری باڈی ہے اس کو چننا ہوتا ہے اس میں یہ غلطیاں ہوئی تھی کہ جہاں پہ جس طرح میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ کچھ لوگ پی ٹی آئی میں ایسے شامل ہوئے جو اپنی اجارہ داری چاہتے ہیں تو فرانس کے اندر بھی کچھ ایسے لوگ پی ٹی آئی میں شامل ہیں جو چاہتے ہیں کہ صرف ہماری اجارہ داری ہو پیسے کے بل بوتے پہ آگے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ جو ہم کہیں وہی قانون ہو ایسا ممکن نہیں ہوتا جب یہ ہو رہا تھا اس وقت کافی مسائل بھی بنے تھے میں وہ ساری ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا لیکن یہ ہے کہ میں نے کافی حد تک بہت سارے لوگوں کو یہ بات سمجھائی تھی کہ یہ سارا جو آپ کر رہے ہیں جس طریقے سے آپ دھڑا دھڑ یہ سارا کچھ کر رہے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے لیکن اس میں کچھ ہمارے ساتھی ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں جی چلن دو جو چلتا ہے ٹھیک ہے اور وہ عہدے بانٹو جس طرح بھی بانٹتے ہیں اور وہ ان کو اصل میں اپنا شہرت کا شوق ہوتا ہے اپنا وہ کچھ نہ کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں اور وہ وقت کے ساتھ ساتھ گرتے سنبھلتے رہتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ شاید جب لچک دکھانے کے لیے دکھا دو آئین کو جو آپ کا پارٹی کا آئین ہے اس کو دباؤ کے تحت سارا کچھ جو کیا گیا تھا وہ دباؤ کے تحت کیا گیا تھا اور اس میں جب پیچھے ہیڈ آفس میں اس کی اگر یہ میں کہوں کہ یعنی عمر رحمان سے یعنی وہ عمر رحمان سے جو کام یعنی آپ لوگوں نے لیا یا کروایا وہ ایک وہ دباؤ میں آگے اور آپ لوگوں میں شامل تو میں بھی آتا ہوں لیکن میں تو ہمیشہ سے اس دباؤ کو روکنے کی کوشش کرتا ہوں اور واحد پی ٹی آئی فرانس کے اندر میں ہی ہوں جس کی مخالفت سب سے زیادہ کی جاتی ہے اچھا اس کی کیا وجہ ہے ویسے اس کی وجہ یہ ہے کہ میں صرف اپنی سنتا ہوں اور میں جو ہے نا جس طریقے سے جو میرا لیڈر جس ایک چیز کو کہتا ہے کہ وہ کرو جو میرٹ ہے یعنی کہ میں اس میں لچک نہیں دکھاتا میں یہ نہیں کرتا کہ نہیں یہ اس سے میرے برناری صاحب سے میرے اچھے تعلق ہیں ان کو آنے دو جہاں پہ مرضی ہے ٹکا دو کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ جو پارٹی کا آئین ہے اس کے مطابق میں کہتا ہوں کہ جو پارٹی کا آئین ہے اسی کے مطابق چلا جائے نہ کہ اپنے خاص لوگوں کے لیے لچک دکھا دی جائے جن سے ریلیشن نہیں ہے یا جو بات نہیں مانتے یا جو مخالفت کرتے ہیں ان کو اگنور کر دیا جائے میری سوچ میں یہ نہیں ہے اس وجہ سے میری مخالفت زیادہ ہوتی ہے کیونکہ میں کہتا ہوں کہ نہیں غلط کو میں غلط ہی کہوں گا چاہے جو مرضی ہو جائے بالکل ٹھیک ہے اور جب بھی آپ سب کے سامنے غلط کو غلط کہیں گے تو مخالفت ہونی ہے
بالکل ٹھیک. یس سر میں نہیں کہہ سکتا اور نہ ہی میرے سے یہ کہا جا سکتا ہے. لیکن پھر کبھی آپ اپنی منوانے میں کامیابی ہوئے ہیں؟ دیکھیں میں اپنی سے مراد یہ کہ آئین کے مطابق میں بات کر رہا ہوں, کبھی کسی نے پھر مانا کہ نہیں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں رہی بات جہاں تک اپنی بات قانون کے مطابق منوانے میں, وہ جب یہ لوگ نہیں مانتے تو میں تھوڑا آگے چلا جاتا ہوں, ایک سٹیپ آگے ہو جاتا ہوں. لیکن یہ ہے کہ جب میں خود کہہ دیتا ہوں کہ یہ غیر قانونی ہے تو میں اس کو نہیں مانتا. تو جب میں ایک الیکٹڈ انفارمیشن سیکرٹری ہوں, ہماری ٹیم کے 4 ممبر ہیں, چاروں میں سے اگر کوئی ایک بندہ کسی غلط بات کو ایک بھی نہیں مانتا تو وہ نہیں ہو سکتی. بالکل ٹھیک ہے. جب تک چاروں ایکسپٹ ہوتی ہے. 4 ممبر ہیں؟ 4 ممبر. کون کون سے, کیا نام ہے؟ عمر رحمان ہمارے پریزیڈنٹ ہیں, جی. وائس پریزیڈنٹ اصغر برہان صاحب ہیں, رانا عمران جنرل سیکرٹری ہیں, اور میں ایز اے انفارمیشن سیکرٹری ہوں. اس کے بعد یہ جو 14 بندے آئے ہیں, 13 بندے آئے ہیں, وہ کیا مجلس شورا بنی ہے, یہ کیا صحیح پوچھیں تو مجلس شورا جو بنی ہے وہ اصولی طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جو الیکٹڈ لوگ ہیں انہوں نے مشاورت سے وہ ایگزیکٹو ٹیم بنانی ہوتی ہے. لیکن یہاں پہ یہ ہوا ہے کہ ایگزیکٹو ٹیم نے خود اپنے نام لکھ کے صدر صاحب کو پیش کیے ہیں کہ ہمیں چنے, اور صدر صاحب یہ چنے, اور صدر صاحب نے وہ اناؤنس کیے ہیں. اور میں اس وقت خاموش اس لیے ہو گیا تھا کہ میں سمجھا تھا کہ میری مخالفت تو آلریڈی چلتی آ رہی ہے بہت عرصے سے, اتنی زیادہ بھی جو ہے مجھے کیا ضرورت ہے کہ جب 3 کہہ رہے ہیں غلط ٹھیک ہے تو میں خاموش ہو گیا. میں غلط نہیں کہا لیکن میں خاموش ہو گیا. میں نے کہا جو ہوتا ہے انہیں تو, کیونکہ میں حکمت عملی سے کام لیا, یہ نہ سمجھے حکمت عملی سے بھی نہیں کام لیا. مقصد یہ ہے کہ صرف میں وہ ایک جو ہے نا دوستوں کو ختم کرنے کے لیے میں نے کہا چھوڑ لیں, جس طرح کیونکہ مجھے نظر آ گیا تھا یہاں پہ کام کوئی نہیں ہونا, اور کسی نے صرف اردو کی ضرورت ہے اور اردو لے کے سارے خاموش بیٹھ جائیں گے. اور وہی ہوا, اور وہ بھی رہے آگے. بس وہ انہوں نے اپنے نام پیش کیے, کچھ نے 2 3 لے لیے, کچھ نے 1 لے لیا. جس طرح ان کو تقسیم آئی انہوں نے اپنے نام لسٹ دی اور صدر صاحب نے اناؤنس کر دیے, اور وہ ایگزیکٹو باڈی بن گئی, خود ساختہ جسے کہا جا سکتا ہے, آپ کہہ سکتے ہیں. میں یہی یعنی پبلک جاننا چاہتی ہے, اور کیونکہ آپ کا انٹرویو جو ہے پوری دنیا میں PTI کے لوگ سن رہے ہیں, تو ظاہر جو آپ باتیں کریں گے جہاں جہاں بھی الیکشن ہو رہے ہیں, ظاہر ان کو مد نظر رکھیں گے, آپ کی باتوں کو بھی مد نظر رکھیں گے کہ ظاہر فرانس ایک مثال بنی ہوئی ہے. اور میرے خیال میں یورپ کے اندر فرانس میں سب سے بڑی پارٹی PTI کی ہے, آپ کو بھی پتہ ہے, سب لوگ جانتے ہیں. تو آپ لوگ اگر, اور یہ جو یورپ کا آپ نے پچھلے دنوں کنونشن بھی پچھلے سال کیا تھا, بہت بڑا پورے یورپ سے, یہ بھی آپ لوگوں کو کریڈٹ جاتا ہے. اتنا بڑا فنکشن کرنا, اتنا بڑا کنونشن کرنا, یہ کوئی چھوٹا کام نہیں تھا, اور آپ لوگوں نے مل کے ہلکے پھلکے اختلافات بھی بلا کر آپ نے کیا. اب میں چاہتا ہوں کہ افضال گوندل جو ہے وہ اگر سچ بات کہتا ہے تو اس کو سچ کہتے رہنا چاہیے. کمپرومائز جو ہے وہ دیکھ برنامے صاحب, میں انشاءاللہ الحمدللہ سچ کہتا آیا ہوں اور کہتا رہوں گا. نہ تو مجھے کسی کا خوف ہے, نہ ہی کوئی ڈر ہے. میں یہاں تک صرف یہاں پہ نہیں, OIC کے یہاں پہ جو ہمارے پاکستان میں ڈاکٹر مایوس صاحب سیکرٹری ہیں اور احمد جواد صاحب ڈپٹی سیکرٹری ہیں, میری ان سے بھی کافی سخت گرما گرمی ہوتی رہتی ہے اکثر. اور یہ سارا سیٹ اپ بھی ان کی وجہ سے, کیونکہ احمد جواد صاحب جو ہے نا وہ سوچتے ہیں کہ شاید میں پورے یورپ پہ ہیوی ہونے کی کوشش کر رہے ہیں, اور وہی سارا کچھ کر رہے ہیں. جب کیونکہ وہ جو جس طریقے سے یہ ایگزیکٹو کونسل آئی یا باقی ملکوں میں بھی آ رہی ہے, اس میں ان کا قصور اتنا نہیں ہے. وہ پیچھے سے ان لوگوں کو رابطہ کر کے کہتے ہیں کہ آپ ایسا کرو, بس جو میں کہتا ہوں وہ کرتے جاؤ, ہو جائے گا. میں اپنی آواز الحمدللہ پہلے بھی بلند کرتا آیا ہوں, کرتا رہوں گا. کیونکہ زیادہ زیادہ کیا ہوگا, یہاں پہ مجھے چیف منسٹر تو تھوڑی لگا ہوا ہے, ایک انفارمیشن سیکرٹری کی وجہ سے تو جب مرضی ہٹا دے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر کوئی یہ سمجھے کہ انفارمیشن سیکرٹری کی حیثیت سے افضال بولنے سے رک جائے گا تو یہ ممکن نہیں ہے. میں نے کھل کے کہا تھا کہ جب آپ کا دل چاہے مجھے کسی بھی وقت آپ ہٹا سکتے ہیں, لیکن OIC کے غلط کاموں کے ساتھ بھی میں ساتھ نہیں دوں گا. اور یہاں پہ جو پورے یورپ کے اندر جس طرح پارٹی کو تباہ کیا جا رہا ہے, میں اس میں آپ کا حصہ نہیں بن سکتا. میں مخالفت کرتا رہوں گا. بہت سارے ورکر اس وقت جو پورے یورپ میں الیکشن ہو رہے ہیں, بہت سارے ورکر ڈیلی کی بیس پہ مجھ سے رابطہ کرتے ہیں, جن کے ساتھ نظریاتی لوگ جن کو جان بوجھ کے سائڈ پہ کیا جا رہا ہے, اور بزنس مین لوگوں کو آگے لایا جا رہا ہے. پڑھے لکھے لوگ ظاہر ہے نظریاتی لوگ وہی ہیں جو پڑھے لکھے ہیں, جو شامل ہوئے تھے پارٹی کی, جن کو مفاد عہدوں سے نہیں ہے, جن کو غرض ہے پارٹی کے لیے کام کرنا, تبدیلی چاہتے ہیں, عمران خان کا ساتھ دینا چاہتے ہیں. ان کو ایک مشن اور ایک پلاننگ کے تحت سائڈ پہ کیا جا رہا ہے.
यहाँ पे एक इलेक्शन कमीशन मुकर्रर किया, उसमें भी कुछ ऐसे लोग हैं जो जानबूझ के लोगों को तंग कर रहे हैं खामखा। उन लोगों के बेचारों की अप्रोच नहीं है कि वो आगे तक पहुंच सकें, और इनको ये पता है कि खान साहब इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो हालात हैं उनमें थोड़े से बिजी हैं, तो ये यूरोपियन जो है इनकी आवाज वहां तक नहीं पहुंचेगी। और ये लोग पाकिस्तान में बैठ के समझ रहे हैं कि यूरोप में रहने वाले सोने का अंडा देने वाली मुर्गियां हैं, जाओ इनको लूटो, लूट के इनको नजरअंदाज कर दो। वो इसी तरीके से बिजनेसमैनों को उठा के आगे लाया जा रहा है। पीटीआई के अंदर भी ओवरसीज में खास कर पैसा भी तो चाहिए ना इमरान खान की पार्टी को। पैसे की जो बुनियाद है इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस इलेक्शन में 1 करोड़ से ऊपर पैसा ओवरसीज में गया है। अच्छा। और ये पैसा क्यों गया, इसका क्रेडिट 1 करोड़ रुपए से 1 करोड़ रुपया, 1 करोड़ रुपया, 1 करोड़ से ऊपर कुछ ऊपर है जो पाकिस्तान गया। तो इसके पीछे अगर इसका क्रेडिट अब ओआईसी भी क्या कह रही है कि ये हमारी बेस पे गया है, इलेक्शन कमीशन, लेकिन हकीकत में क्या है, जो नजरियाती वर्कर है उसने उन बिजनेसमैनों को चैलेंज किया कि हमने मुकाबला करना है। ओके। अब बिजनेसमैनों की ये इंसल्ट हुई कि ये नजरियाती वर्कर हैं, मजदूर हैं, चंद दिन थोड़े थोड़े तनख्वाहों के मालक हैं, ये इनको इतनी सैलरी है नहीं, तो ये हमारा मुकाबला कैसे करेंगे। नजरियाती वर्करों ने ओरिजिनल काम किया, तो वो जो साइड पे हो रहे हैं, उन्होंने पैसा लगा के वो आगे निकल गए। उस आगे निकलने की दौड़ में ये पैसा पाकिस्तान गया। जब नजरियाती वर्कर पीछे हट जाए तो कोई बिजनेसमैन तो पैसा लगाता ही नहीं है, नहीं लगाएगा। बिजनेसमैन फायदे के लिए पैसा लगाता है, गलत काम जहां पे प्रॉफिट नहीं होती बिजनेसमैन पैसा नहीं लगाता। जब नजरियाती वर्कर पीछे हट जाएगा तो बिजनेसमैन समझेगा कि अब हमारा मुकाबला नहीं है। जिस तरह पिछला 2013 में यहाँ फ्रांस के अंदर हुआ था, तो यहाँ फ्रांस के अंदर ये हुआ था कि 100 इतने बड़े मुल्क में 100 के कुछ 80 के 70 के लगभग मेंबर बने थे, तो बिजनेसमैनों ने आपस में कट जोड़ करके एक प्लानिंग के तहत कहा जी छोड़ो, पर इलेक्शन कराने की जरूरत नहीं है, ये पैसा फजूल में जाया कर रहे हो, ये है वो है। तो एक बॉडी चुन ली थी जिसमें उन्होंने सारे ओहदे नामजद कर लिए थे। तो वहां पे स्वाय मेरे कोई बंदा नहीं बोला था, मैं वहां पे अकेला खड़ा होकर मैंने कहा था जी इस तरह मैं नहीं बनने दूंगा, मैं आपका मुकाबला करूंगा। उस वक्त मैं अल्लाह और उसके रसूल के सिवा मैं अकेला था जिसने चैलेंज किया और मैं बाहर निकला। और मैंने ये बात की थी, आज भी मेरे पास वो वीडियो भी है, मैंने ये बात की थी कि आप लोग बेशक जीते लेकिन मैं आपको टफ टाइम दूंगा, आपने मुकाबला करके पार्टी का पीटीआई फ्रांस का सदर बनना है, ऐसे नहीं मैं बनने दूंगा। और पार्टी के जो क़यादत संभालनी है मुकाबला करके संभालनी है। तो जब मैं बाहर निकला तो मेरे साथ अल्लाह और उसके रसूल के सिवा कोई नहीं था। तो मैंने सोचा कि इतना बड़ा स्टेप तो मैंने ले लिया है, आगे मैं क्या करूंगा। मेरा एक नाम है, इतने अरसे से मैं पार्टी का एक बानी मेंबर हूं, तो दुनिया तो मेरे पैसे की। यकीन माने कि मैंने सिर्फ यही कहा था कि या अल्लाह अगर मैं हक पे हूं तो मेरी मदद करना, अगर मैं गलत हूं तो मेरी इस्लाह करना। 1 साल का दौरानिया गुजरा, इलेक्शन पेंडिंग हुए, तो मुझे ओआईसी से भी डिप्टी सेक्रेटरी साहब ने भी फोन करके कहा कि आप मियां जुल्फकार साहब की हिमायत में बैठ जाओ, ये है। मैंने इनकार किया, उसकी वजह से मैं उनकी हिट लिस्ट पे भी आ गया। लेकिन मैंने अल्लाह से ये दुआ की कि अगर मैं या अल्लाह मैं अगर हक पे हूं तो मेरी मदद करना। तो मेरी अल्लाह ने मदद की कि जो अपने आप को 1 साल से सदर समझता रहे वो आखिर पे बिल्कुल काया पलट गई। और मैंने उस वक्त भी यही कहा था कि पार्टी का सदर उमर रहमान को आना चाहिए, पढ़ा लिखा भी है, सही नजरियाती और दलेर उसने रखी है, दलेर भी है और सही। तो उस वक्त भी मैंने मेरे इख्तिलाफ ये थे कि पार्टी का सदर उमर रहमान को आना चाहिए। इसी वजह से मैंने इनकार भी किया, मैं आपका साथ नहीं दूंगा, मैं चैलेंज करता हूं, मैं मुकाबला करूंगा। तो आज मेरी अल्लाह मेरी इज्जत रखी। कहते हैं कि जिसे अल्लाह इज्जत दे उसे कौन जलील कर सकता है। तो वो आज सदर भी सारे अच्छा काम कर रहे हैं, यासिर कदीर माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और भी सारे जितने दोस्त भी हैं। सिर्फ ये है कि ज़ाहिर गुरबंदी तो फिर हो जाती है, रूटीन में चंद दोस्त जब इकट्ठे हो जाते हैं तो ज़ाहिर कोशिश तो करते हैं किसी न किसी तरह। लेकिन मेरे ख्याल में पीटीआई को और बाकी जमातों में फर्क होना चाहिए। अगर आप लोग भी उसी तरह ही करने लग जाएंगे कि जिस तरह दूसरी जमातों में होता रहा है या हो रहा है, तो क्या फायदा, यानी तब्दीली कैसे? यानी अगर आप लोगों को तो एक मॉडल बनना चाहिए ना। सबसे पहले तो बरनावी साहब, हम जब जिन्होंने पीटीआई की बुनियाद रखी थी तो हमारे अंदर कुछ ऐसे लोग कुछ थे जिन्होंने हमें तोड़ने की कोशिश की। यानी कि दूसरी पार्टी ने जब समझा कि पीटीआई फ्रांस इतनी एक्टिव हो चुकी है कि हमारा तो नाम ही खत्म हो जाएगा, यानी कि आए रोज मीटिंग्स, जलसे, जुलूस, तो उन्होंने हमारे अंदर लोग तैनात किए
ठीक। जिन्होंने, कुछ लोगों ने हमारे जो है दोस्तों को, हमारे जो बड़े बड़ा काम करने वाले दोस्त हैं, उनको कुछ तरीकों से खरीदा, कुछ को मीडिया का जो है दिया के शोहरत दी, कुछ को पैसा दिया, सारी हर चीज चली है। और उस हिसाब से उनको अपने साथ लगा के वो पार्टी को तबाह करने में भी हमारे अपने साथी ही शामिल है, जिन्होंने गलत साइड पे पार्टी को ले गए थे। और जो पार्टी में सबसे ज्यादा समझते हैं कि पार्टी को सबसे ज्यादा उन्होंने फायदा दिया है, वही पार्टी को सबसे ज्यादा नुकसान देने में भी पेश रहे हैं मुख्तलिफ लोगों की। खवातीन में से आपने देखा मैडम शाह बानो जी बिल्कुल ही वो सियासत से किनारा कशी कर लिया उन्होंने सियासत से। तो इस तरह, हालांकि वो बानियों में ऐसे, खवातीन में बानियों में से हैं, मेरे ख्याल में जो सीनियर लोग हैं, इज्जत रिस्पेक्ट उनकी होनी चाहिए, उनको वो मुकाम देना चाहिए जो उनका बनता है। यहाँ पे जो नजरियाती लोग हैं उनको इस तरीके से जलील और रुसवा किया जाता है कि वो छोड़ जाए, क्योंकि देखें बरनारी साहब, आप खुद इस चीज को समझते हैं कि जो एक इज्जतदार आदमी होता है ना, उस पर जब आंच आती है तो वो फौरी तौर पे अपनी इज्जत की सबसे पहले सोचता है कि मुझे इज्जत बचानी है। मैं आपको एक, जब ये इलेक्शन हुए, एक वाकया सुनाता हूं कि किस तरीके से बंदे को हमारे पास प्रेशराइज करके निकाला जाता है। आखिरी बात में जस्ट आपको कि जब इलेक्शन हुए तो उसके बाद मैं पाकिस्तान गया, पाकिस्तान से वापस आया। जब मैं वापस आया तो जो इन्होंने ये सारा कुछ किया हुआ था, मैं उसके खिलाफ जब बोला तो मैं उनकी मर्जी के मुताबिक नहीं चला, तो मेरे ऊपर प्लानिंग के तहत एक केस कर दिया गया करप्शन का, जो आज मैं अभी वो भुगत रहा हूँ, वो मेरे पे चल रहा है। और मुझे जब वो एक CRC बनाई गई, उस CRC में वो लोग बिठाए गए जो सारे के सारे मासूम 2 लोगों के, सारे के सारे 5 बंदे हैं, 5 में से 3 मेरे खिलाफ हैं, जो सख्त खिलाफ है, जो चाहते हैं कि किसी भी तरह इसको लाया जाए। बंदा साइड पे, 2 लोग इंडिपेंडेंट हैं। तो मेरी पार्टी के सदर ने और उन्होंने इनकार किया कि हम CRC को नहीं मानते क्योंकि गैर कानूनी तरीके से बनाई गई है, मुशावरत नहीं की गई है। तो मैंने ये कहा कि CRC में पहला केस मेरे खिलाफ है, ठीक है, CRC को ना माने, मैं अपना केस इसी CRC के सामने लड़ने को तैयार हूं, क्योंकि जब मुझे पता है कि मैंने गलती नहीं की तो मुझे कोई खौफ नहीं है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह हलफ भी दे सकता हूं कि मैंने आज तक, जब से मैंने PTI फ्रांस ज्वाइन की है, उस वक्त से लेके आज तक एक पैसा भी किसी वर्कर का अपने हाथ पे नहीं पकड़ा। अगर किसी की रहनुमाई किया तो उसके साथ गया हूं, जहां से पैसा भेजा जाता है, जिस तरीके जो भी हमारा तरीकाकार है, बैंक का, वेस्ट यूनियन का, मैं उसके साथ जाके किया है। किसी वर्कर से भी मैंने आज तक पैसा हाथ में पकड़ के नहीं भेजा। बिल्कुल ठीक। एक इस इलेक्शन में सिर्फ एक बंदे से, जिसने लोगों से पैसे इकट्ठे किए थे, इम्तियाज अकरम कदर ने, उसने मुझे पैसे दिए थे जो मैंने अपने नाम से भेजे। उसकी फौरी तौर पर रसीद मैंने उसे दिखाई कि ये जितने इतने पैसे तुमने मुझे दिए, ये पैसे भेज दिए। उसके अलावा मैंने PTI फ्रांस में से आज तक किसी का 1 सेंटी भी अपने हाथ में नहीं पकड़ा। बिल्कुल ठीक है। इसके बावजूद भी इल्जाम भी लग गया और मैं उसको भुगत भी रहा हूं, और इंशाअल्लाह मुझे यकीन है कि हमेशा जीत सच की होती है, और मेरा अल्लाह मुझे इससे सुरखरू जरूर करेगा। और मैं हिम्मत नहीं हारूंगा, मैं मुकाबला जारी रखूंगा और इंशाअल्लाह करता रहूंगा, चाहे मेरे पास कोई ओहदा हो या ना हो। मैं गलत लोगों के खिलाफ खड़ा होता रहूंगा इंशाअल्लाह। मैंने देखा है आपके जितने भी जलसे यहाँ 1-2 हुए हैं, माशाल्लाह आप 200-400 बंदा आप जलसे में लाना आपके लिए कोई बड़ी बात है ही नहीं। और मैंने ये अपनी आंखों से देखा है, क्यों कि आपका माशाल्लाह एक बहुत बड़ा यहाँ सिस्टम है और एक बहुत बड़ा नेटवर्क है लोगों को यानी लाना। और आपके भाई अमजद जो है, अमजद गोंदल है, वो माशाल्लाह बड़े पढ़े लिखे और बड़े समझदार, और पार्टी को आपके बाद उन्होंने भी शुरू में यकीनन पार्टी को चलाया, लेकिन ज़ाहिर है वो अपने कारोबार में बिजी हो गए हैं। तो अब आप क्या समझते हैं कि अब ठीक, अब पार्टी बिल्कुल ठीक जा रहा है, अब बेहतर है कुछ? नहीं, जब से ये जो बेहतरी इतनी आसानी से भी नहीं आएगी, इतनी जल्दी भी नहीं आएगी, क्योंकि जिस तरह से बेहतरी तब आएगी जब पाकिस्तान में बैठे जो लोग हैं उनके अंदर बेहतरी आएगी, तो वहां पे तब्दीली जब होगी उसके लिए हम लगे हुए हैं। और इंशाल्लाह हमारी आवाज क़यादत तक, लीडरशिप तक पहुंचेगी कि जो उस वहां पे बैठ के प्लांटेड लोग बैठ के यहाँ पे पार्टी के अंदर इंतशार फैला रहे हैं, उसको तब्दील किया जाए। वहां पे ऐसे लोग बिठाए जाए जो पार्टी के नजरियाती लोगों की सपोर्ट करें, और यहाँ पे नजरियाती लोग पार्टी को प्रमोट करें, जिससे पार्टी को जो बुनियादी फायदा वो पहुंच सके। 1-2 आखिरी बात गोंदल साहब, कुछ PTI के ही लोग चाहते हैं कि वो ये समझते हैं कि अक्सर छोटे मोटे झगड़े
यानी पीटीआई में जो खवातीन आई हैं उनकी वजह से भी हो जाते हैं, तो वो समझते हैं कि खवातीन को इनका एक अलग ही प्लेटफार्म कर दिया जाए ताकि ये अपना काम करें, ज़रूर करें। और ये जो छोटे मोटे लड़ाई झगड़े, लिखने लिखाना और जो आजकल चल रहा है खवातीन के इशू पे बरनारी साहब मैं बात इतनी नहीं करता, क्योंकि मीडिया पे खवातीन का इशू बड़ा एक एहसास होता है। मैं भी, मेरे माँ भी हैं, बहनें भी हैं, बच्चों वाला भी हूँ, क्योंकि मैं इस बात को, मैंने खुद ये सबसे पहले सजेशन पेश की थी जहाँ पे, जिस वजह से असल मसला बना था, क्योंकि कुछ खवातीन के पीछे कुछ प्लांटेड लोग हैं जो उनकी सपोर्ट करते हैं। मुझे नहीं पता कि उनका क्या लेना देना है या क्या है, मुझे इससे में गरज नहीं है, लेकिन मैंने उन्हें ये कहा था कि खुदारा खवातीन को पीटीए फ्रांस से अलग करें, उन्हें अपना काम करने दें। पीटीए फ्रांस में रहें, लेकिन इस टीम से अलग करके अपना काम करने दें, वो जिस तरह मर्जी है करें। ये जिस तरह मीटिंग्स में बुला के फिर एक दूसरे पे वोटिंग करना कराना, ये सारा सिलसिला खत्म करें और उनके अंदर जो आपने एक मुकाबलेबाजी शुरू की है उसको बात करें। लेकिन मेरा ख्याल है वो जो लोग जो इस तरह आए हैं, वो जिनका मकसद ही पार्टी को तोड़ना है, वो आई सिर्फ पार्टी को तोड़ने के लिए, पार्टी को फायदा देने के लिए नहीं आए। और वो पार्टी के चैंपियन भी बनते हैं, वो कहते हैं कि हम पार्टी के चैंपियन हैं। बनाने वाले हम हैं, चैंपियन वो है। वो पार्टी को तोड़ने के लिए आए हैं, पार्टी को चलाने के लिए नहीं आए, और वो ये चाहते हैं कि सारा सिलसिला खवातीन का चलता रहे। अल्लाह ताला बेहतरी करे। और आखिरी को पैगाम, कोई जस्ट आखिरी पैगाम मैं दोस्तों के लिए, अपने दोस्तों के लिए, पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लिए एक ही पैगाम दूंगा कि जिस लीडर को हम फॉलो करते हैं उसका नारा है कि तब्दीली आनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। सबसे पहले तब्दीली अपनी सोच के अंदर लाएं हम लोग खुद। मेरे सुआ खुदा के लिए आप सब लोग इस बात पे गौर करें कि हमने खुद अपने आप को तब्दील करना है। पाकिस्तान खुद बहुत तब्दील हो जाएगा, दुनिया खुद बहुत तब्दील हो जाएगी जब हम अपने अंदर तब्दीली लाएंगे। जरूरत हमें अपने अंदर तब्दीली लाने की है। और मैं उम्मीद करता हूं कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ के चाहने वाले मेरी इस बात को और मेरी इस रिक्वेस्ट को सोचेंगे, गौर करेंगे कि खुदा के लिए इन झगड़ों में मत पड़े, इन ओहदों में ये सारा कुछ मत पड़े। ये वक्त ही है पार्टी के लिए, पाकिस्तान के लिए काम करें और तब्दीली अपनी सोच में लाए। एक दूसरे पे ब्लेम गेम, एक दूसरे पे इल्जाम या एक दूसरे की तस्वीरें लगाना, नीचा दिखाने से बेहतर है कि खुद काम करके आगे जाए, बजाय कि दूसरों की टांगे खींचे, वर्क करके आगे जाए। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। कुछ भी न रहंदा है, फिरदा है बंदा जिवें रखिया खुदाई दा, दिल वाला दुखड़ा नहीं किसे नू सुनाईदा। ये गल ते हर कोई जानदा है, मेला बेलियां दा यारां बेलियां दा, नबी पीर फकीर इमाम दा दे संग छड्ड गए ने यारां बेलियां दा, राजा पाइयां नू छड्ड फकीर बनया, हीर छड्ड गई पूर सहेलियां दा, एक दिन असां परदेसियां दी आलमा टुर जाना, खुड्डा मार के ना हवेलियां दा, छड्ड यारियां तेरा दुनिया ते कम की। फख्र पाकिस्तान दयारे गैर में आबाद 80 लाख से जायद पाकिस्तानियों की शिनाख्त का प्रोग्राम, जिसमें दुनिया भर में रहने वाले पाकिस्तानियों से आपकी मुलाकात होगी। फख्र पाकिस्तान एक ऐसा दस्तावेजी प्रोग्राम जिसमें मादरे वतन के लिए दयारे गैर में जद्दोजहद करने वाले हमवतनों को उजागर किया जाएगा। देखना मत भूलिए पेरिस की मशहूर समाजी शख्सियत चौधरी सफ्दर बरनाली की मेजबानी में फख्र पाकिस्तान। नाज़रीन, अगले हफ्ते इसी वक्त आपसे मुलाकात होगी। मां वर्गा कण छावा बूटा अते किधरे नजर न आवे, जिस तू छाव
ਮੁਕਿਆ ਮੁਰਝਾ